ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 120 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਕੱਕੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕੇਵਲ 25 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ 12 ਸਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੋ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਜੋ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਅੱਜ ਇਨੈਗੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 120 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਦਾ ਹੈ, 10 ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, 40 ਈਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ 50% ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਬਸ ਹੈ ਅਲਟਰਾ ਮਾਡਰਨ ਲੈਬਸ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਲੈਬਸ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਜੋ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਸ ਲੈਬਸ 'ਚ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲਟਰਾ ਮਾਡਰਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 15 ਤੋਂ 17 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈ। ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਇੰਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਫੈਕਲਟੀ ਬੜੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂँਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਨੰਬਰ 2 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੋਟਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਜੋ 25% ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਬੱਚੇ ਹੈ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਗੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਟਾਫ ਟੌਪ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੀ ਨਾਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਰਿਟ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੈ ਤੀਸਰੀ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਈਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਂਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ। गुड मॉर्निंग ऑल। केंद्रीय विद्यालय का हेल्प डेस्क फॉर एडमिशन्स शुरू किया है आज हमने। यहाँ पे हम क्लास 1 की एडमिशन्स कर रहे हैं अभी। क्लास 1 में हमारे पास 120 सीट्स हैं। अब 120 सीट्स विद 3 सेक्शंस, 40 बच्चे हमने एक सेक्शन में रखने हैं, जिसमें से कि 25% सीट्स जो हैं वो हम RTE के तहत बिल्कुल फ्री देने वाले हैं। और 25% का मतलब है 30 सीटें हमारी फ्री वाली हैं, जिसमें हम SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर एंड EWS BPL कैटेगरीज वाले जो है पेरेंट्स वो अप्लाई कर सकते हैं। हम 6 साल का बच्चा जो है वो एडमिशन कर लेते हैं। हमारी जो एडमिशन फ़ीस है वो केवल 25 रुपये है, 25 रुपीज़ ओनली। एंड ये 25 रुपये जो हैं ये वन टाइम फ़ीस है, हम बार बार नहीं लेंगे। जैसे कि प्राइवेट स्कूल्स वाले हर साल एडमिशन फ़ीस लेते हैं या डेवलपमेंट फ़ीस लेते हैं, हमारी ऐसी कोई हिडन फ़ीस नहीं है, डेवलपमेंट फ़ीस नहीं है। हम सिर्फ एक बार 12 सालों में 25 रुपये लेंगे केवल। और जो मंथली फ़ीस है वो हमारी जो क्लास 1 के लिए है वो केवल 500 रुपये महीना है। हम यहाँ पे फ़ौजियों के जो बच्चे हैं या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनके बच्चों के अलावा जो सिविलियंस हैं हम उनको भी एडमिशन देते हैं यहाँ पे। मेरे यहाँ पे जो एडमिशन बच्चे आ रहे हैं उनको हम केवल पढ़ाई ही नहीं, बाकी एक्टिविटीज़ में भी हम लोग जो है ऑल राउंडर जो है बच्चे को बनाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन एक्टिविटीज़ के ज़रिए बच्चों को पढ़ाया जाता है। बच्चों को बहुत सारा जो है स्पोर्ट्स की में जो है आगे बढ़ना चाहता है बच्चा तो स्पोर्ट्स में जा सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे को जो है ट्रैक सूट्स, बच्चे को इक्विपमेंट्स और बच्चे को इधर लेके जाना, कहीं पे आउट ऑफ द स्टेट जाना है या फिर स्टेट में कहीं जाना है तो टीचर एस्कॉर्ट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त है। इसके अलावा और जो साइंस की जो हमारे पास लैब्स हैं बहुत ही अच्छी हैं। इसमें हमारे पास मॉडर्नाइजेशन वाला इक्विपमेंट है जिसको बच्चा जो है खुद से चला के देख सकता है और जो है सीख सकता है, एक बेहतर
तरीके से सीख सकता है। हमारे पास प्लेग्राउंड्स बहुत अच्छे हैं, लाइब्रेरी जो है पूरी 6000 किताबों के करीब हमारे पास जो है फुल स्टॉक है। इसमें भी हम लोग जो है हर साल रिन्यू करते रहते हैं। जो सरकार की निपुण भारत स्कीम है, जिसके तहत हम फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी जो है बच्चे को निपुण बनाते हैं, जिसमें वो हम स्कीम इस साल NEP 2020 के तहत शुरू कर रहे हैं। इसके लिए टीचर्स को बाकायदा ट्रेन किया गया है एंड समय समय पर जो है बाकी और जो भी ज़रूरतें होती हैं उसके हिसाब से टीचर्स को ऑल इंडिया लेवल पे जो है ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो टीचर्स KVS में जो भर्ती होते हैं वो भी नेशनल लेवल पे टेस्ट लिख के जो है इंटरव्यूज़ क्लियर करके उसके बाद यहाँ पे आते हैं। अगर कोई वैकेंट सीट रह जाती हैं तो हर साल हम लोग जो है कॉन्ट्रैक्चुअल की टीचर्स के लिए ऐड देते हैं और उनको हम 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को भर्ती करके अपनी कमी पूरी करते हैं। इस स्कूल में कभी टीचर्स की कमी नहीं रहती है, कभी संसाधनों की कमी नहीं रहती है और अगर पढ़ने वाला बच्चा हो तो बहुत अच्छी ऊंचाइयां छू सकता है। हम अगर देखें हमारे समाज में ऐसे कई जो है ऑफिसर्स या फिर वेल नोन पर्सनालिटीज़ जैसे कि सुष्मिता सेन, मिस यूनिवर्स प्रियंका चोपड़ा एंड अगर फौजी देखिए अभिनंदन, आपको मालूम है कितना नाम उन्होंने किया। तो ऐसे जो हैं बड़े प्रोमिनेंट जो लोग हैं वो यहाँ पे KV में पढ़ के गए हैं और यहाँ पे अगर आसपास कुछ ऑफिसर्स देख लो आप, तो यहाँ पे हमारे अलुमनाई जो है वो भी आके बच्चों को प्रेरित करते हैं और ताकि जो है बच्चे उनसे मोटिवेट हों। तो इस स्कूल का काफ़ी नाम है। मैं चाहूँगी कि अगर किसी को ये गलतफहमी है कि यहाँ पे सिर्फ जो है डिफेंस पर्सनल्स के बच्चे ही पढ़ सकते हैं, तो उनका ये मैं भ्रम दूर करना चाहती हूँ। यहाँ पे सिविलियंस भी आ सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं यहाँ केंद्रीय विद्यालय फरीदकोट के अंदर एडमिशन इंचार्ज हूँ। एडमिशन का सारा काम मैं देखता हूँ। मैं आज आपको हमारे स्कूल के अंदर जो अवेलेबल वैकेंसीज़ हैं, सीट्स जो हैं एडमिशन के लिए, उसके बारे में बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ क्लास 1 के अंदर, कक्षा 1 के अंदर 120 सीट्स हैं और बाकी क्लासेस के अंदर जो हैं वो हमारे पास टाइम टू टाइम जो हैं सीट्स बढ़ती या कम रहती हैं और हम वो सीट्स सिविलियन स्टूडेंट्स के लिए भी ओपन करते हैं एडमिशन के लिए। हमारा जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो बहुत कम है। हमारी जो क्लास 1 और 2 की फ़ीस 500 रुपये महीना है, प्रति माह 500 रुपये है और क्लास 3 से लेके 8वीं क्लास तक हमारे जो बच्चों की फ़ीस है वो 600 रुपये महीना है। क्लास 9वीं और 10वीं क्लास की जो फ़ीस है वो 800 रुपये महीना है और क्लास 11 और 12 की फ़ीस 1000 रुपये महीना है। एक बात आप मैं सबको बताना चाहूँ कि जितनी भी लड़कियां हैं उनकी हमारे स्कूल के अंदर ट्यूशन फ़ीस माफ़ होती है। कोई भी लड़की हो जो हमारे स्कूल में एडमिशन लेती है उसकी ट्यूशन फ़ीस माफ़ होती है और उनकी ट्यूशन फ़ीस नहीं ली जाती कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक। अगर कोई बच्चा हमारा जो है RTE के अंदर फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेता है तो उसकी 8वीं क्लास तक पूरी फ़ीस माफ़ रहती है और उसको जो है उनके यूनिफॉर्म, उनके शूज़ और बुक्स जो हैं वो भी स्कूल प्रोवाइड करता है, उसका खर्चा भी स्कूल उठाता है। हमारी जो बुक्स है हमारे विद्यालय के अंदर वो पूरे भारत के अंदर जो यूज़ की जाती हैं वो NCERT की हैं और वो बहुत ही इकोनॉमिकल होती हैं, क्योंकि जो प्राइवेट पब्लिशर्स हैं उनकी बुक्स बहुत महंगी होती है, लेकिन जो NCERT की बुक्स हैं जो पूरे भारत में यूज़ की जाती हैं वो सबसे सस्ती और सबसे ज़्यादा जो है क्वालिटी वाइज अच्छी होती हैं। इसके अलावा हमारे विद्यालय के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि कंप्यूटर लैब्स हमारे विद्यालय के अंदर 2 हैं। हमारे विद्यालय के अंदर इंटरैक्टिव क्लास जो हमारे क्लासरूम्स हैं वो हमारे 22 इंटरैक्टिव क्लासरूम्स हैं। इसके अलावा हर क्लास के अंदर प्रोजेक्टर और कंप्यूटर भी है। इसके अलावा हमारे स्कूल के अंदर लैंग्वेज लैब है जिसमें हम लोग बच्चों की जो लैंग्वेज के लिए, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, उसकी भी तैयारी करवाते हैं। केमिस्ट्री लैब है, फिज़िक्स लैब है, बायोलॉजी लैब है, मैथमेटिक्स लैब है, रिसोर्स रूम है
और बहुत सारे ग्राउंड्स हैं हमारे पास वॉलीबॉल का ग्राउंड है, बास्केटबॉल का ग्राउंड है, हमारे पास क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल का ग्राउंड है। प्राइमरी के लिए अलग स्टेज है, अलग एरिया है। सेकेंडरी के लिए हमारे पास अलग स्टेज और अलग एरिया है। हमारे स्कूल के अंदर जो पानी की व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है। हमारे स्कूल के अंदर 4 से 6 आरओ लगे हुए हैं। इसके अलावा हमारे स्कूल के अंदर जनरेटर की फैसिलिटी भी है। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल आपने देखे होंगे जहाँ जनरेटर की फैसिलिटी नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ पे जनरेटर की भी फैसिलिटी भी है। और फीस हमारी जितनी हमने बताई है वो सबसे कम है। और इसके अलावा किसी भी बच्चे से कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाती है। अगर हमारा बच्चा हमारे स्कूल को किसी कंपटीशन में रिप्रेजेंट करता है तो उसके लिए जितनी भी यूनिफॉर्म है और जितने भी शूज़ हैं वो सब स्कूल प्रोवाइड करता है। उनके बच्चों के माता पिता का एक पैसा नहीं लगता है। उसको ले जाने का, वहाँ उसको रखने का, उसके खाने पीने का सब ध्यान जो है हमारे विद्यालय की जिम्मेवारी है। और इस तरह से हमारे विद्यालय के अंदर बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे पढ़ के गए हैं। जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे तो नाम ही किया है। आपको मैं हमारे फरीदकोट के अंदर ही जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जो फिशरी ऑफिसर हैं, आज अब वो डिविज़नल ऑफिसर बन गए हैं, वो हमारे सरदार जोगविंदर सिंह जी, वो हमारे ही केवी के पढ़े हुए हैं, हमारे ही एलुमनाई हैं। इस तरह से मैं आप सभी जो पेरेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे विद्यालय में अपने बच्चों की एडमिशन करवाइए और उनको एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का मौका दीजिए, ताकि वो आगे बढ़ के जैसे और बच्चे हमारे स्कूल से निकल के अच्छा नाम कर रहे हैं वो भी नाम कर पाए। धन्यवाद। जो निजी स्कूल है और आपका स्कूल है उसमें कितना डिफरेंस है पेमेंट का? सर, निजी स्कूल के अंदर जब आप एडमिशन करवाने जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले वो एडमिशन फ़ीस लेते हैं, बिल्डिंग फ़ंड अलग लेते हैं, ट्यूशन फ़ीस अलग लेते हैं, कंप्यूटर फ़ीस अलग लेते हैं। उसके अलावा और सारे चार्जेस हैं जो उनको ने अलग अलग नाम पे रखे हुए हैं वो अलग लेते हैं। हमारे यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जो है 3 कंपोनेंट हैं। सिर्फ कंप्यूटर फ़ीस है वो 100 रुपया है 1 महीने की, और जो बाकी हमारी ट्यूशन फ़ीस है वो 200 रुपये महीना है, और हमारा वीवीएन जो है वो 300 रुपये महीना है। तो इस तरह से हमारा जो है वीवीएन हमारा 500 रुपये महीना है। तो इस तरह से हमारा जो है और कोई फ़ीस चार्जेस नहीं है। लेकिन इसमें भी ट्यूशन फ़ीस 1 क्लास से लेके 8वीं क्लास तक सबकी माफ़ है। तो इसलिए वो फ़ीस सिर्फ 500 रुपये महीना बनती है और कोई फ़ीस नहीं है। एडमिशन फ़ीस के नाम पे सिर्फ 25 रुपये में एडमिशन हमारे स्कूल में होती है, और वो जब तक बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ेगा उससे और कोई फ़ीस नहीं ली जाती है सर।